everyone, this side Preet Kamal. I'm a lecturer at Maheshwari Polytechnic College, Jalandhar. Today I will be discussing with you the subject details of electronic devices and circuits. But before starting with the subject details, I would like to share an important information that is related to Mission Fateh, the campaign run by Punjab government. That is, we should wash our hands regularly, we should use sanitizer, mask, and along with that maintain the social distancing rules so that we could win against this COVID-19 situation. Okay, so in the last lecture, in the previous lectures, we have discussed about different negative feedback circuits, and we discussed the advantages of negative feedback circuit, and thereafter we discussed about that we generally employ negative current feedback circuits in the amplifiers because of their good properties related to the impedance matching, right? And not mostly utilize the negative voltage feedback circuits. And we have discussed about one of the circuits of negative feedback, negative current feedback circuit, that was without bypass capacitor, the common emitter circuit without bypass capacitor, but that was only employed for the gain stability and not for the impedance matching. So that is why today we will be discussing about the circuit that is called the common common collector circuit, or we can say it the emitter follower. The name of the circuit is the emitter follower. So why the name emitter follower is basically utilized is because it follows the emitter, the output follows the input. The emitter is basically used to collect the output in this circuit. Generally in any of the amplifier circuits, we collect the output from the collector of the transistor, but in this particular circuit we will collect the output from the emitter part, right? And if we are collecting the output from the emitter side, so that output is basically following the input, exactly following the input. So wherever the input follows, similarly the output will follow the input. So that is why it is called as the emitter follower, or we mostly say it as a common collector circuit. Generally in the amplifier circuits we use common emitter circuits, but in this particular circuit we have changed the scenario and we have utilized the common collector circuit. Now let's see how this circuit works. First of all, if we will talk about the input side, and it is exactly the same as the simple amplifier circuit, the voltage input, the capacitor, the biasing resistors, but the difference here is that we do not have any RC, that is we are missing the collector resistance. We have not used any RC here because here this is working as a common collector circuit. So this collector part has been made common to both the input as well as output. That means in this circuit we are providing input at the base and the collector side. Here we are providing the input and we are collecting the output from the emitter and the collector. Basically we are calculating our output from this point, that is the emitter side. emitter side से हम लोग यहाँ से आउटपुट जो है वो ले रहे हैं, और जो कलेक्टर है वो यहाँ पे हम एज अ कॉमन टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे इस सर्किट में हम R1 और R2 एज बाइसिंग रेजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं. इसको हम सर्किट को रीड्रॉ भी कर सकते हैं. तो इसको रीड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से अगर R2 को हटा दें और इसे यहाँ हम लिख सकते हैं RB, तो ये भी एक हमारा तरीका है एमिटर फॉलोअर सर्किट को ड्रॉ करने का. तो ये RB बेसिकली क्या होगा, RB will basically be equal to R1 over R1 plus R2, वो इसके बराबर होगी, राइट. तो इस तरह से हम लोग ये RB यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं R1 और R2 की जगह पे, या फिर इसको हम ले सकते हैं RB is equals to R1 plus R2. इन दोनों के सीरीज़ जो रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, वैसे बेसिकली ये R1 over R1 plus R2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी रेजिस्टेंस है दिस RB रेजिस्टेंस, वो बेसिकली
इन दोनों रेजिस्टेंसेस का एक जगह से हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी आउटपुट हम एक जगह से कलेक्ट कर रहे हैं सीरीज़ रेजिस्टेंस की। तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे जो हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं और उन दोनों के सम के साथ डिवाइड कर रहे हैं उससे, जैसे हम वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए सीरीज़ रेजिस्टेंसेस की किसी एक रेजिस्टेंस में से वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वही सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज़ R1 एंड R2, अब दोनों रेजिस्टेंसेस लगा के भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। देन आफ्टर अगर हम लोग बात कर रहे हैं आउटपुट पे, आउटपुट लेने की, कलेक्टर साइड जो है उस पर आउटपुट कलेक्ट करने की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि IE जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, IE करंट, दैट इज द करंट फ्लोइंग इन द इमिटर साइड, वो किसके बराबर है अब, दैट इज इक्वल्स टू -V0/RE। तो ये करंट है, यहाँ पे हमारी आउटपुट वोल्टेज है और ये हमारी रेजिस्टेंस है। तो जो करंट है वो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का डिवीजन जो रेशो होती है, दैट इज योर करंट। एंड नेगेटिव साइन, यू ऑल नो दैट नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ द 180 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, राइट। तो उस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन है। और जब हम बात कर रहे हैं VBE की, दैट इज़ द बेस इमिटर वोल्टेज, जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एग्जैक्टली VS के ऊपर डिपेंड करेगी और IE इंटू RE के ऊपर, बिकॉज ये सेम इसी तरीके से आपका सिग्नल जो है वो वर्क कर रहा है। एंड इट विल बी एग्जैक्टली द सेम एज VS माइनस IE RE, जैसे हम लोगों ने लास्ट सर्किट के अंदर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो जब हम IE की बात करते हैं, यहाँ पे IE की वैल्यू हमारे पास है -V0/RE, तो यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं -V0/RE। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये माइनस और माइनस बन जाएंगे प्लस, और ये RE और RE एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ MV0 की, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे M की बात करें तो यहाँ M की जो वैल्यू है दैट इज़ 1। इफ़ हेयर इट इज़ MV0, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं MV0 की, ठीक है, तो MV0 की वैल्यू जो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे M की वैल्यू है 1। तो M की वैल्यू 1 का क्या मतलब है कि 100% आपका जो आउटपुट का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट जो हम लोग इनपुट पे देते हैं, फीडबैक फ्रैक्शन, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स 100% आपका सिग्नल जो है आउटपुट से इनपुट की तरफ जा रहा है, कंप्लीट सिग्नल इज बीइंग इनपुटेड। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका गेन यूनिटी है और लेस देन यूनिटी यू कैन से। तो अगर इस सर्किट का गेन लेस देन यूनिटी है या यूनिटी है, यूनिटी मीन्स 1 है, फीडबैक पूरा का पूरा आउटपुट सिग्नल हम लोग इनपुट पे भेज रहे हैं, गेन इसका 1 है, अगर गेन इसका 1 है मतलब A की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब आउटपुट ओवर इनपुट, राइट। जो आउटपुट गेन होता है दैट इज इक्वल्स टू V0/Vin। तो अगर गेन की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, V0 इज इक्वल्स टू Vin हो गया। तो अगर V0 और Vin दोनों इक्वल हैं तो बेनिफिट क्या हुआ इस सर्किट का, कोई एम्पलीफिकेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई फीडबैक फैक्टर, जो सारा का सारा आउटपुट पे हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है वो सारी एज अ फीडबैक फैक्टर हमारी इनपुट के अंदर जा रही है, कोई भी चीज़ हम लोग आउटपुट पे एग्जैक्टली रख नहीं रहे हैं। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सर्किट, दिस सर्किट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर impedance matching, the best circuit, the simplest circuit, जो काम हमारा बहुत बल्कि ट्रांसफार्मर करता है इम्पिडेंस मैचिंग का, वो काम ये 4-5 कंपोनेंट्स वाला एक छोटा सा सर्किट, अगर हम इसे इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो वो भी यही सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। को एज अ बफर एम्पलीफायर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका गेन यूनिटी है, गेन इसका 1 है एमिटर फॉलोअर सर्किट का, इट डजेंट मैटर, बिकॉज इस सर्किट को हम लोग वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए वी आर ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ सर्किट्स, बट इट इज़ अ प्योर कंप्लीट circuit that is utilized for impedance matching, because इसकी जो इनपुट इम्पिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है और जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लो है।
और इसलिए इसको अगर हम इनपुट इम्पिडेंस की बात करें तो ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। बीटा इज़ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, आर ई और आर इन जो रेजिस्टेंसेज हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करी हैं, ठीक है। आर इन कैन बी दिस, आर बी को आर इन का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें आर नॉट डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, तो ये आउटपुट इम्पिडेंस है, राइट। तो इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस की वैल्यूज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड हैं, इनके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज आर ई के साथ इसकी वैल्यू जो है वो प्लस हो रही है, लेकिन जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो लो है क्योंकि आर नॉट के साथ बीटा की वैल्यू जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है। तो दैट इज़ वाई ये फैक्टर जो है वो रिड्यूस होगा और ये फैक्टर प्लस में जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, तो दिस फैक्टर विल इंक्रीज इटसेल्फ। तो इस रीज़न की वजह से ये जो सर्किट है इट कैन बी यूज्ड एज द best replacement of the transformer in case of the impedance matching. So that is why this is called as an emitter follower circuit. emitter जो है उस पर आप आउटपुट ले रहे हो और वो जो आउटपुट है इमिटर पे जो आप आउटपुट ले रहे हो दैट इज़ फॉलोइंग द इनपुट, एग्जैक्टली फॉलोइंग द इनपुट। जैसे भी आपका इनपुट सिग्नल होगा एग्जैक्टली द सेम विल बी योर आउटपुट सिग्नल, कोई एम्पलीफिकेशन नहीं होगी इसमें। जो फीडबैक फैक्टर है वो 1 है, जो गेन है वो 1 है, लेकिन इसमें जो बेस्ट थिंग है दैट इज़ द इम्पिडेंस मैचिंग, जिसकी वजह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसका नाम जो है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट भी है। इसको हम लोग रीड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इसको रीड्रॉ करना चाहें तो मैं आपको करके दिखा सकती हूँ यहाँ पे। इफ़ आई विल रीड्रॉ दिस सर्किट इन अनदर वे, तो ये किस तरह से रीड्रॉ किया जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका इनपुट सिग्नल जैसे हम लोग जनरली बनाते हैं VS, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो इनपुट जो आप यूज़ कर रहे हो कैपेसिटर, देन आफ्टर जो R1 और R2 हैं वो इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं R1 और R2 को, एंड देन आफ्टर यहाँ पे हम इसका वोल्टेज जो VCC सप्लाई है वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इसकी, एंड देन आफ्टर हेयर वी आर यूजिंग द दिस इमिटर साइड, और यहाँ पे कलेक्टर साइड से हम लोग RE रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है, एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे CC कैपेसिटर के साथ हम लोग यहाँ पे आउटपुट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द दिस ग्राउंड, राइट। तो इस तरह से इस सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें तो ये सर्किट भी एक तरीके का कॉमन कलेक्टर सर्किट का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपका कलेक्टर साइड है दिस इज़ कॉमन टू द आउटपुट साइड एंड एज वेल एज द इनपुट साइड, और यहाँ पे जो इमिटर है वहाँ पे हम लोगों ने VCC सप्लाई जो है वो कनेक्ट करी है। तो किसी भी तरह से आप इस सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो पहला वाला सर्किट है उसी तरीके से हम इस चीज़ को जो है वो ड्रॉ करते हैं, बट बेसिकली आप किसी भी तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको इजी लगे। RB वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, R1 R2 वाला भी कर सकते हैं, ये वे भी यूज़ कर सकते हैं, बट द बेसिक थिंग इज़ कि हमारा जो सर्किट है ये एमिटर फॉलोअर, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सर्किट, नेगेटिव करंट फीडबैक का सबसे इम्पॉर्टेंट सर्किट है ये, और इसे हम किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में कहीं पे भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें इम्पिडेंस मैचिंग सर्किट की ज़रूरत होती है। तो आई होप इट इज़ कम्प्लीटली क्लियर टू यू, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है, क्लियर है, ठीक है। अगर फिर भी स्टिल यू विल बी हैविंग एनी डाउट्स देन वी विल बी टेकिंग देम इन द लाइव सेशन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट इज़ व्हाई आई हैव टेकन इट अलोन टुडे, right? And with this our chapter number 3 is also over, that is the feedback in amplifier circuit जो हम लोगों ने start किया था, it is completely over, right? So if you will be having any doubts we will be taking it, do like and comment on my video so that I could know that you have gone through it thoroughly. Till then take care, bye bye.